Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to second day of the 13th Deans and Directors Conference. We are delighted to have you back, and we continue our discussions on shaping the future of higher education and business information in the age of AI. We now begin with our first session of the day, featuring a distinguished speaker, Mr. Zafar Masood, who is the President and CEO, Bank of Punjab, will be joining us online. The session is titled Responsible and Ethical AI in Digital Transformation. This session will examine the social, ethical, and regulatory implications of AI adoption in business and higher education here in Pakistan. So, Right. the stage is yours. Thank you very much. First of all, at the very outset, apologies for not showing up, physically to the conference. I'm slightly under the weather, and because I had already committed with Dr. Zahoor, I just didn't want to extract myself out of it under any circumstances. There are other reasons for not missing this opportunity also, which I'll talk about in a bit. Thank you, Doxa, for the invite. It's a pleasure and honor to be part of this August gathering. As you know, Doxa, I am a firm believer that there is an earnest need for better collaboration between academia and industry. And whenever the opportunities like these arises, I grab them with both hands. And of course, on top of that, the topic of AI, where not only this collaboration is inevitable, but more and more discussion is absolute necessity to skin this beast, which I think is a tall order. But nevertheless, in order for us to remain close to the curve, if not ahead of the curve, more of such fora needs to be organized. My felicitations to the organizers. Ladies and gentlemen, at the outset, let me make a bold statement. Artificial intelligence is no longer a future discussion. It's already influencing who receives credit, who gets hired, who is flagged for risk, who receives services, and increasingly, who participates in the economy. Goldman Sachs estimates that AI could add nearly $7 trillion to the global GDP over the coming decade. Yet, history teaches us that every technological revolution creates both opportunity and inequality. As a banker and as the chairman of the Pakistan Banks Association, I see one reality clearly. Technology is becoming more powerful while human accountability is becoming more diluted. The widening gap is the central challenge of AI era. The question before us is not whether AI can change the world, it already has. The real question is whether our institutions, our universities, our judgment can evolve quickly to keep pace. For the first time in history, technology is not merely processing information. It is influencing decisions, recommendations, and human behavior. The danger of AI is not that machines become too intelligent. The danger is that the institution fail to adapt at the same speed. AI capability is rising exponentially, whereas institutional readiness is rising gradually. The space between these two curves is what I call the trust deficit. When biased decisions are made by individuals, the effect doesn't. When biased decisions are made by algorithms, they affect millions. The danger is not malicious code, the danger is unquestioned data. AI is more than automation technology. It is a judgment science. Industrial revolution replaced muscle. The computing revolution replaced manual processing.
The internet revolution replaced distance. AI increasingly shapes judgment itself. That is why ethics is no longer optional, it is infrastructure. The risk of AI is not artificial intelligence, it's artificial consensus. The industrial era standardized production, AI risks standardized thought. Universities exist to cultivate independent thinking, intellectual disagreement, and original ideas. They are society's anti-monopoly institutions for ideas. What should students never outsource to AI? Students should use AI for research, information retrieval, and efficiency. But critical thinking, ethical judgment, creativity, curiosity, context, and accountability must remain human. The future will reward people who ask better questions, as the prompting will always remain in control of humans. Trust is AI's most valuable asset. Trust is not a cost of doing business. Trust is the business. And intelligence becomes abundant. Trusted intelligence becomes scarce. In the AI era, trust becomes the new capital. It's important to figure out the analogy between AI and blockchain. Both technologies seek to solve the same problem: trust in a digital world. Digital identity answers who can be trusted. Blockchain answers what can be verified. AI increasingly answers how decisions can be trusted. In line with the topic of today, for responsible and ethical AI, 4 questions need a response. First, about data. Should we use this data? Number 2, model. Can outcome be explained? Number 3, humans. Who remains accountable? And number 4, society. Who benefits and who bears the brunt? There are the real leadership questions in today's age of AI. These questions poses an unprecedented responsibility on business schools. The challenge is not producing AI users. The challenge is producing leaders who can govern AI responsibly. Therefore, the future belongs to trusted intelligence. The winners of AI era will not simply be those with smartest algorithms. They will be those with the most trusted institutions. AI is not at its heart a technology story. It is a human story. The central challenge of the AI era is not technological, it is moral. The future, therefore, belongs to trusted intelligence. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Zafar Saab, for a very comprehensive talk. You touched a number of very important dimensions. So when we have been talking about AI the whole of yesterday also, and I think one of the things which has come up is that we need to develop our own models and leverage our own data so that we are not dependent on what's coming from the developed world, because it has maybe inherent biases, and also we gave up a lot of data that should concern us. So what do you think should be the role of large organizations in terms of promoting awareness and understanding of these issues, specifically with respect to how we share data, how do we protect our data, and how do we sensitize people who are using AI, not only as professionals but also as laymen? So what are your views on this, and what do you think we need to do in concrete sort of terms for this? Thank you. That's a very, very important and pertinent question, I must. And as always, you've asked a very interesting question. Look, let me just try and put things in context, and I try and, this is the way I operate. I try and simplify things as much as possible.
so that we don't make things complicated for ourselves. To begin with, AI already exists in one form or the shape, not just now, it has always been there. To my mind, the rudimentary level of AI was perhaps the Excel sheet, and that has now evolved into a larger machine learning sort of models. And therefore, we need to first figure out that while AI is a cliche these days and fashionable to be quoted everywhere, we need to contextualize what does AI means. And that's why, if you look at my slide that I talked about, what are the 4 questions we need to ask? The first and the foremost is the quality of the data. Our challenge won't be, Dr. Saab, to create our own models. I think that's easier to be done. In fact, it's much easier to resort on what is already available. The larger problem in our context is the data authenticity and the extent of data which is available out there. हम अपने मॉडल तो बनाना कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने बनाया है बैंक ऑफ पंजाब में. वी हैव कुछ हमने अडैप्ट किए हैं from UK and China, and some we have prepared ourselves too. But it's the data which is the larger problem. And in data, when we talk about data, one is the quality of data, and the other is the democratization of the data. Even if we talk about the quality of data, which is seriously questioned and challenged. In fact, the other day I was at the Sin Club talking about the pre-budget conference, and one of the structural reforms that I talked about, and that's quite relevant in the context of your conference as well, is to make sure that the quality of data and the statistics department needed to be revamped completely. Until and unless you have the quality data available, any tool that you will prepare locally will have very limited appeal. The second big challenge is to access that data. We have some treasure trove of a data available in different pockets, but unfortunately they are not shared and they're not accessible at one particular place, and I call it financial data exchange. Until unless that financial data exchange, so quality of data, once that is available, whatever is available, you put it under that financial data exchange and then give the access to every one of that data of different, to different extents. कुछ पे आप चार्ज कर लीजिए बैंकों से जिनको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चाहिए, बट स्टूडेंट को चाहिए तो उसको आप कुछ और दे दीजिए, एंड दैट्स हाउ दिस होल थिंग नीड टू इवॉल्व. तो इन मेरे जहन में तो developing the model per se locally is no big deal. It is actually the data, and जो ethical question आज आपने मुझ पे पोज किया है डॉक्टर साहब, वो भी सारा का सारा driven है by the quality of data. अगर quality of data ही questioned है तो फिर आपका output जो है वो कभी भी useful नहीं हो सकता, and that will do more harm to the society overall, which was my fourth quadrant in that graph that I showed you. Then help, and this is what my take on your questions. There's one thing which was discussed yesterday, and I want to have your take on that. As now we have access to a lot of information, lot of things which others have done, so we are inclined to use that, and sometimes जैसे हम एकेडमिक काम में करते हैं कि जी यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स ओरिजिनल. अब वो व्हाट्स ओरिजिनल एंड व्हाट्स नॉट ओरिजिनल की डिस्टिंक्शन बड़ी मुश्किल. एंड देयर वाज अ कमेंट मेड बाय वन ऑफ द स्पीकर्स यस्टरडे कि एथिक्स हैज टू बी रीडिफाइंड. इसमें देयर इज अ काउंटर आर्गुमेंट, एथिक्स इज एथिक्स, व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग, व्हाट इज नॉट योर्स इज डेफिनेटली नॉट योर्स, तो यू शुड नॉट क्लेम कि ये चीज़ आपने की है. एंड स्पेसिफिकली जब आप मॉडल बेस्ड या एआई बेस्ड आउटपुट निकालेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट इश्यूज इन टर्म्स ऑफ व्हाट कैन यू क्लेम टू बी योर्स एंड व्हाट यू नीड टू एक्नॉलेज कि इट इज़ बीइंग जनरेटेड थ्रू अ सिस्टम. क्योंकि अगर एक एग्जांपल किसी ने कोट की कि अगर पेपर भी
फैकल्टी मेंबर एआई से बनाएगा, स्टूडेंट भी उस पेपर को एआई से सॉल्व करेगा, तो यू कांट ब्लेम द स्टूडेंट कि वो स्टूडेंट गॉट अ परफेक्ट आंसर. So what is your take on this, especially from a professional aspect? How do we sensitize people? How do we make people aware कि जी ये जो ethical lines हैं वो इससे blurred नहीं होती, बल्कि they need to be sharpened? जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग, आई वुड से थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल टेक. मेरा टेक ये है कि एआई टूल पर से कि देखिए उसमें भी दो पहलू. एक पहलू ये है कि जो टूल पर से है वो कितनी ऑथेंटिक आउटपुट आपको देता है. अच्छा, मैं लेटली, ऑल्दो आई एम अ लेट कमर, पर मैं पिछले को 3-4 महीने में आई बिकम एन एक्सटेंसिव यूजर ऑफ द डिफरेंट ये जो टूल्स है, starting from cloud to chat gpt to grok to वो जो बाकी है the couple of others as well, वो सारे मैंने डाउनलोड कर लिए and I keep on comparing all of them with each other. मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि हर एक offers their own strengths and weaknesses and you need to figure out कि आपने कौन सा वाला सबसे ऑथेंटिक आपको नजर आता है कि जिसको आपने फॉलो कर, और वो जो आपकी जो आपका ऑथेंटिसिटी वाला पीस है वो ही ड्राइव करता है मोरालिटी को. अगर आपका ऑथेंटिसिटी वाला पीस को आप स्किन कर लेते हैं तो फिर जो आपका मोरालिटी वाला पीस है वो काफी हद तक उसमें कैप्चर हो जाता है. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि जो टूल आप यूज कर रहे हैं उसको आप प्रॉम्प्ट क्या कर रहे हैं, जो दूसरा वाला सबसे इम्पोर्टेंट. और जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में भी आपसे गुजारिश की, क्रिटिकल थिंकिंग है ना, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं. तो व्हाट आई फिगर्ड आउट कि अगर आप बगैर सोचे समझे उसके अंदर सिर्फ उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे और उसको प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक एरियाज यू वांट देम टू कवर, तो वो आपको प्लेन वनीला रिस्पॉन्स देगा. People who have critical thinking and understanding of the subject will always remain ahead of the game, even in solving the papers in the examination, because they will ask them the right questions, which will give them the response, which is the right response to my mind, rather than asking them a plain vanilla response. And invariably, I have noticed that you get a plain vanilla output. Which perhaps does not earn you the kind of scores that you are looking for. So therefore, the important thing is that you shall not compromise on the authenticity of the tool that you are using. You have to do that assessment yourself, and that authenticity, Dr. Saab, will always be a big question mark, in the sense that authenticity, even if you prepare the model yourself, somebody else may not find it as authentic as you believe it is. So therefore, it is not important whether you develop the model yourself or somebody else will do it. It is the authenticity of the output which is more important, that you need to verify, and the prompting that is happening from your part will set you apart from the others for sure. So आपको कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई ना करें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ना करें और आप उसकी बेसिस पे जाके एक अच्छा स्कोर कर लें. पीपल हु विल स्कोर बेटर, पीपल हु विल बी एबल टू सेट अपार्ट देमसेल्व्स, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, फ्रॉम द रेस्ट, will depend on what kind of access to the data you have, and it will depend on what kind of question you will ask the tool. Thank you so much. Assalamu alaikum ji. This is Dr. Sadia Nadeem from FAST. ज़फ़र साहब, आपको पिछले 5-6 सालों में मल्टीपल टाइम्स एथिक्स के बारे में बात करते सुना है. हमेशा बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं. इस वक्त जो बात हो रही है एआई की, थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल और माइक्रो लेवल हुई, विच आई एन्जॉयड. इस वक्त ऑडियंस में पाकिस्तान भर के बिजनेस स्कूल के बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स, डीन्स वगैरह बैठे हुए हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस कन्वर्सेशन टू अ स्लाइटली हायर लेवल एज वेल, जिसमें जहां हम बात करें पिछले 5 साल में हमने
यंगस्टर्स के एथिक्स के लिए हम क्या कर सकते थे, फ्यूचर वर्कफोर्स के एथिक्स के लिए क्या कर सकते थे, करना चाहिए था, आप इस पे बात करते हैं। तो अगले 5 सालों में, 10 सालों में जिस तरह आप दुनिया को बदलते देख रहे हैं बिकॉज ऑफ AI, व्हाट कैन द फैकल्टी, द डीन्स डू? एक तो है ना जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उससे थोड़ा सा निकल कर हम क्या कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो कल के ग्रेजुएट्स हैं, जो यंग वर्कफोर्स है, वो एक स्ट्रॉन्गर एथिकल वैल्यूज़ के साथ अपने काम करें। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन द जी क्वेश्चन। वेरी वेल जी, जी वेरी please, वेल I would appreciate your thoughts on this. Thank you. जी जरूर जी जरूर Dr. Sadia, thank you very much for your compliments. It really means a lot when it comes from people who've been instrumental in one's upbringing. और आप लोग वो लोग हैं जो knowingly unknowingly हम जैसे लोगों को की डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग दैट रोल, जिसका शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता, मगर इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स व्हेन यू गेट इन टच विद द लार्जर ग्रुप और जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, यू विल फिगर आउट कि यार एथिक्स है क्या. यू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी. इन फैक्ट मेरा तो मैं आपसे थोड़ा फिलोसफिकल साइड पे, अगर डॉक्टर जरूर मुझे इजाजत दें कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जाऊं उस साइड पे, मगर क्योंकि ये फोरम ऐसा है कि मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल साइड. मेरा तो टेक ये है कि यू लर्न मोर फ्रॉम दोज हु आर इन अ वल्नरेबल स्टेज, who are still evolving in their ideas and thoughts. You don't learn from those necessarily who have fixed ideas, who proven themselves, but observation of those people, how they react in an adversary as the vulnerable part of the community. और वहां से आपको एथिक्स डिटरमिन होती है आपकी, वहां से आपको एथिक्स सीखने की जरूरत है. नॉट परहैप्स एट द टॉप, परहैप्स एट द टॉप एज वेल. वहाँ डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर नीचे के लेवल पे, हर लेवल पे आपने स्टूडेंट से सीखना है, आपने अपने स्टाफ से सीखना है, आपने अपने डोमेस्टिक स्टाफ से सीखना है. बट डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स दैट रेस्ट प्राइमरीली with the parents and the household. मेरा ख्याल है कि हम जरा ज्यादा अपने प्रोफेसर्स को अंडर प्रेशर करते हैं about this particular thing. I think it's, to begin with, it's a collective responsibility of everybody, but the primary responsibility comes from the values that you gain from your own family and your parents. और वो एथिकल वैल्यूज जो है ना, वो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे वो AI या नॉन AI कुछ भी हो, अगर वो बेसिक कोर एथिकल वैल्यूज आर देयर, then आप यू विल ऑलवेज ऑपरेट एट एथिकल लेवल. अच्छा, अब होता क्या है कि एंड दिस इज अ प्राइम एग्जांपल कि आपने कुछ बच्चे को कह दिया और पेरेंट्स जो है ना, वो आके आपके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि आपने हमारे बच्चे को यूं क्यों कह दिया, आपने इस तरह की कह दिया, उस तरह की कह दिया. हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ये होनी चाहिए कि वो ये कहें कि जो तुम्हारे टीचर और प्रोफेसर तुम्हें बता रहे हैं, वो सिखा रहे, तुमने उसको रिलीजियसली फॉलो करना. एंड दिस इज वेयर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एथिक्स कम थ्रू टू माय माइंड. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप पे डालता है तो मेक श्योर कि अब आप उनको उस डायरेक्शन में ड्राइव करें कि जहां पर जो एथिक्स के, मैं उसको कहता हूँ, पेरिफेरीज हैं, वो फिट हो सके. फॉर एग्जांपल, चीटिंग आपको नहीं करनी. फॉर एग्जांपल, आपको टूल यूज नहीं करना जिसकी ऑथेंटिसिटी आपने वेरीफाई नहीं की. फॉर एग्जांपल, आपकी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं ढूंढना टू फाइंड एन आंसर टू अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, आपने एक तरीके से अपने स्कूल में ऑपरेट करना है विद द अदर कॉलीग्स, विद द अदर स्टूडेंट्स, एंड जो स्टाफ होता है, खास तौर से जो सपोर्ट स्टाफ होता है, उससे आपका क्या बिहेवियर है. मेरे ख्याल से वहां टॉलरेंस लेवल 0 होनी चाहिए. क्योंकि हम अगर घर से ये तालीम नहीं लेके आए कि हमें अपने
जो सपोर्ट स्टाफ है उसको किस तरह बिहेव करना है और डील करना है. तो आई थिंक दैट इज टू माय माइंड इज द फर्स्ट टेस्टमेंट दैट आपकी परहैप्स जो है वो एथिकल एजुकेशन ठीक नहीं हुई. और वहाँ टॉलरेंस आप लोगों के लिहाज से बिल्कुल जीरो होनी चाहिए. वहाँ आपके हिसाब से चीटिंग पे टॉलरेंस जीरो होनी चाहिए. इन दिस इवॉल्विंग वर्ल्ड आपको उनको ये सिखाना है कि आपने टूल को यूज कैसे करना है इन अ एथिकल वे. यानी कि आपने, जिस तरह मैंने वो बात की थी क्वाड्रेंट की, कि आपने वेरीफाई करने हैं. नंबर 1, क्या आपने वो असेसमेंट किया है या नहीं किया. आप जरूर टूल यूज कीजिए, मगर क्या आपने डेटा की ऑथेंटिसिटी जो थी, जो आपने उसमें डाला, क्या आपने उसके ऊपर काम किया, उसको वेरीफाई किया. क्या आपने जो उसके ऊपर जो मॉडल रन किया, क्या आपने उसका पीयर रिव्यू करवाया या नहीं करवाया. आपने उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया या नहीं किया. आपने अपनी ह्यूमन जजमेंट उसमें कितनी हद तक लगाई है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ड्स टू सोसाइटी, क्या उस आपका जो रिसर्च का आउटपुट है वो लोगों को गलत मैसेज तो नहीं देगा. और आई थिंक आपकी एंड पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ऑफ इन दिस न्यू एआई वर्ल्ड, उसमें वो जरूर एआई को यूज करें, बट दे नीड टू जस्टिफाई हाउ एंड व्हाई दे यूज द एआई and what was the process of using the AI. To my mind, process is more important than the outcome per se, and this is what perhaps the schools need to taught their students even more in a more pronounced fashion than it's being done right now, in my very humble opinion. Thank you so much, and thank you for putting some of the responsibility on the parents as well there. Thank you. Assalamu alaikum. And Dr. Sahab, Dr. Sophie Anwar here. I'm professor of economics. So my question is a bit related to the economic side. On one thing, that Pakistan is facing a very large problem related to the shadow economy. And for the shadow economy, the role of banks and the institution is very profound. If more number of the transactions and the bank accounts are there. So my question is not from your side related to only BOP, it is being the representative of the banking paraphernalia total. That how our banking system is working to improve the financial literacy and to improve the financial inclusion, so that the maximum number of the population is getting the bank accounts and having the trust on the banking system to have maximum transactions from that banking, so that the documentation of the economy is possible. Dr. Sahab, thank you very much for asking this very important question. मेरा तो कहना ये है कि एक उर्दू का वर्ड है विस्की गार्ड. आई डोंट नो यहाँ कितने लोग उर्दू को किस तरह समझते हैं, मगर वो विस्की गार्ड का मतलब है कोर ऑफ द प्रॉब्लम. द कोर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी इज इन दिस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी. अच्छा, अब अगर हम इसको एक दफा एस्टैब्लिश कर ले कि कोर ऑफ द इकोनॉमी का जो इशू है, वो इशू जो है वो रेस्ट करता है इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, तो फिर ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. नॉट जस्ट द बैंकिंग इंडस्ट्री पर से, और द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और नादरा, और whoever, or FPR for that matter. It becomes the responsibility at the individual society level. To begin with, Dr. साहिबा, मैं यहाँ पर मेरा एक थीसिस है जो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, जो मैं बहुत एडवोकेट करता हूँ, वो है द चार्टर ऑफ सोसाइटी. चार्टर ऑफ सोसाइटी, मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे सोसाइटी को अग्री करना है ऑन देयर ओन. ये वो कौन सी चीजें हैं जिससे आपने डाइग्रेस नहीं करना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. वो तकरीबन जिस तरह रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं, उस तरह ही वो इकोनॉमी की परवरिश के लिए बहुत जरूरी है. और वो इकोनॉमी की परवरिश का मतलब ये है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. शायद वो हमारे टाइम में तो उसका बेनिफिट आपको फौरन नजर ना आए, मगर गोइंग इनटू द फ्यूचर वो आपको जरूर उसका बेनिफिट नजर आएगा. और फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट empowerment of women, empowerment of poor and vulnerable, empowerment of those who are excluded from the system right now.
and then charter of society has to agree in the larger scheme of things ये हम सब के लिए जरूरी है कि the charter of society हम कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें और to my mind documentation of the economy is that charter of society to begin जहां पर हमें फोर्स करना पड़ेगा दूसरों को कि जी अगर मुझे ये गाड़ी खरीदनी है तो मैं उसी प्राइस पे खरीदूंगी जिस प्राइस पे मुझे उसको टैक्स देना है अगर मुझे ये प्लॉट खरीदना है तो मैं डीसी रेट पे नहीं खरीदूंगा मैं उसी प्राइस पे खरीदूंगा जो जो प्राइस की बनती है आई एम विलिंग टू पे द टैक्स एंड यू नीड टू रिक्वायर टू पे द टैक्सेस नाउ व्हेन दिस प्रेशर विल कम ओवरऑल on everybody you will see the society will evolve और इसी को मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो आप कोई बड़ी आइडियलिस्टिक बात है यूके में कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट यूके ओनली ऑपरेट्स ऑन द एथिक्स एंड देयरफॉर कोई वहां कागज पे नहीं लिखा कि ये डीसी रेट होगा या नहीं होगा दे ऑल ऑपरेट ऑन एथिक्स एंड सेम गोज फॉर यूएस 4 सफ़ों का टोटल कॉन्स्टिट्यूशन सो देयरफॉर we need to begin with as a society must reconcile to the fact that the documentation of the society is the biggest evil, is the whiskey gone, and that needed to be addressed and that needed to be taken care of. Now, when we arrive at that conclusion, the second to my mind are the follow-ups only. The second to my mind are merely the steps that needed to be taken to make sure that all the parties including the banks are playing their role. अब मुझे ये बताइए एक कस्टमर जो है जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन ही मौजूद नहीं है जो कुछ मुझे दिखाने को तैयार ही नहीं है जिसके पास ऑडिटेड डेटा नहीं मौजूद अगर एक कस्टमर जो है वो मुझे टैक्स के रिटर्न नहीं दिखाना चाहता है उसने टैक्स फाइल ही नहीं किया हुआ और मेरे पास एक्सेस भी नहीं है कि वो कितना उसके पास लैंड की कितनी अवेलेबल है डिजिटली या उसके पास उसने बिल बिजली का कितना दिया है तो मुझे बताइए बैंक्स कैसे असेस करेंगे उसको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस एंड बी एबल टू प्रोवाइड द क्रेडिट बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट दे डजंट डील इन गुड्स सो देयरफॉर it is very important that the society itself start adopting towards the documentation. Secondly, the digital era will play a major and responsible role towards improving the financial inclusion because वो data जो proxy data इसको हम कहते हैं वो बेशक आप documentation के नीचे है मगर वो डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं कि आपने बिजली का बिल कितना दिया फोन का बिल कितना दिया आपका लैंड कितना है एक्साइज कितना दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए अगर मेरे पास वो डेटा आ जाता है तो मैं उसकी क्रेडिट असेसमेंट कर सकता हूँ और दिस विल देन बी ए कैरेट फॉर दैट एसएमई और एग्रीकल्चर और इंडिविजुअल टू देन डॉक्यूमेंट देमसेल्फ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इज बैंक्स नीड टू यूज दैट एआई to do the right assessment of that individual's credit worthiness. जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक फाउंटेन पेन आप यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर आप गलत उसका डिसीजन ले लें तो उसका नुकसान बहुत सारे लोगों को होता है बट अगर आपने एल्गोरिथम भी गलत डाल दिया तो मिलियंस ऑफ लोग विल रिमेन आउटसाइड द फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मैंने वहाँ एग्जाम्पल भी आपको भी कोट की थी पहली स्लाइड के ऊपर जिसमें मैंने गोल्डमैन सैक्स की बात की कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट था कि ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन असेसमेंट वाज रिक्वायर्ड टू फिगर आउट कि जेंडर बैलेंस है नहीं अब फॉर एग्जांपल उसमें क्या हो रहा था उसमें ये हो रहा था कि जो जेंडर है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा वो उसकी बेसिस पे कैलकुलेट जब करता था तो अगर डॉक्टर सोफिया का और जफर मसूद का क्रेडिट स्कोर बराबर है तो डॉक्टर सोफिया को जफर मसूद के मुकाबले में आधे पैसे मिलेंगे व्हाई बिकॉज जेंडर की बेसिस पे डॉक्टर सोफिया का जो पास डेटा है विमेन का वो ये शो करता है कि विमेन को आपने क्रेडिट पास में नहीं दिया हुआ इसलिए आप उसी के नंबर की बेसिस पे वो नंबर डिटरमाइन करें नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक्स टू मेक श्योर कि वो आप जो एआई यूज कर रहे हैं जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो ये सारे बाइसेस जो है उसको निकाल दे सिस्टम में से और बिल्कुल सही आउटपुट दे विच इज प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट
and not based on the input of the garbage data. Thank you very much, Dr. This is Dr. Saima Aftab from GIK. Thank you for rightly pointing out the importance of prompt engineering. As you rightly said, it is very important. It depends on the formula of garbage in, garbage out. So, don't you think that the communication models being taught in the institutes right now should be redefined as well? Because it is no more human to human interaction. It is now AI in the loop as well. So human, AI, and then humans, how are they interacting? Don't you think कि हमें business communication models को revamp करने की ज़रूरत है और students को उसी तरह से teach करने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर? What is your take on this? Thank you. जी, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि in this जो डॉक्टर सादिया ने सवाल पहले पूछा था, हमें चेंज करने की जरूरत है the model that we are, the training model that we are using in business schools or otherwise as well. Because अगर हम वही conventional तरीके से यूज करते रहेंगे टूल्स, तो हमारे जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल कोट की कि कोई बात नहीं, उनको जरूर यूज करने दीजिए चैट जीपीटी, मगर उनसे वो 4 क्वेश्चन जरूर पूछिए. क्या आपने डेटा को ऑथेंटिकेट किया था? क्या आपने अपनी ह्यूमन जजमेंट लगाई थी, और लगाई थी तो कैसे लगाई थी? आस्क देम टू गिव यू द लॉजिक. क्या आपने ये कंसिडर किया था कि जो मॉडल आप डेवलप करने जा रहे हैं या मॉडल जो आपने यूज किया उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बाकी लोगों पे क्या हो सकता है अगर वो आपकी रिसर्च के ऊपर रिलाई करें. एंड दैट्स हाउ द एंटायर कम्युनिकेशन इन द बिजनेस स्कूल्स नीडेड टू बी रिवैम्प्ड in those lines. The conventional ways of communication and training, I don't think will be able to last longer. जो मैंने अपनी एक स्लाइड में आप लोगों से जिक्र भी किया था कि वो कि क्या क्वेश्चंस हैं, जो चीजें नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, एथिकल जजमेंट है, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और अकाउंटेबिलिटी है. इनके अराउंड आपने एक ऐसे जरूर लिखवाना है उससे, जब भी आप कोई एजुकेशन करने जा रहे हैं या आप कोई उनको टूल यूज करने का सिखा रहे हैं, ये सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है उनके लिए. अदरवाइज दिस कुड इम्पेयर देयर रियल गेन दैट दे कुड गेट फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज. Zafar Sahab, Assalamu alaikum. I am Dr. Noman from Institute of Management Sciences, Bahauddin Raki University, Multan. Sir, since yesterday, कल भी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत AI और बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर बात हुई. आज भी आपने माशाल्लाह बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया. जब सारे दोस्त AI को रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, तो अभी तक कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में AI की इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी मंजर आम पे नहीं आई. और अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनने जा रही है तो उसमें आप लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द बैंक्स एंड देन ईच बैंक विल कीप इट्स पोजीशनिंग इंटैक्ट? तो ये जरा काइंडली अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ. बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर नुमान, मगर मैं इसका जवाब आपको बड़ा सिंपल तरीके से दे देता हूँ. डॉक्टर जहूर knows my views about having the policies or the documents or having some kind of binding things in place. मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता. Policies can take you that far. आप पॉलिसी जरूर बना लीजिए, but it comes from within. आपने सिस्टम ऐसा डेवलप करना है कि रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो ऐसी हो कि आप मोर एंड मोर AI को यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर केस, इन बैंक ऑफ पंजाब केस, हमने आपको कल नोफल ने आपसे शेयर भी किया होगा किस तरह हमने डिफरेंट AI टूल्स को ग्लोबली एंड लोकली यूज किया है, और उसका अंजाम ये हो रहा है डॉक्टर नुमान कि अब जो बाकी बैंक्स है ना, वो भी उसको यूज करने जा रहे हैं. तो पॉलिसी और नो पॉलिसी, टू माय माइंड, पॉलिसी डजंट ड्राइव द यूज ऑफ AI एज सच. द पॉलिसी कैन ओनली गिव यू अ डायरेक्शन परहैप्स, बट द ड्राइव कम्स फ्रॉम the need
of the business to do it. एंड वो बिजनेस की नीड जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउंस होती जा रही है. उसमें होता क्या है डॉक्टर साहब के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि पहला स्टेप कौन लेता है. बारिश का पहला कतरा जो है वो कब गिरता है, और जब वो बारिश का पहला कतरा गिरता है तो उसके बाद बाकी जितने लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज वो उनकी रिक्वायरमेंट बन जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन ने यूज कर लिया तो बाकियों को करना चाहिए. एंड देयरफॉर मेरे हिसाब से पॉलिसी और नो पॉलिसी, इट शुड बी ड्रिवन फ्रॉम द बॉटम अप, इट शुड बी ड्रिवन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, एंड दैट रिक्वायरमेंट बाय द वे इज बिकमिंग मोर एंड मोर इन द फेस, जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल अब हम उसको अवॉइड कर नहीं सकते. डिसीजन मेकिंग के अंदर इतनी एफिशिएंसी है डॉक्टर साहब यूजिंग द एआई टूल्स कि आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज से पहले जब मुझे प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी पड़ती थी, आई मस्ट एडमिट कि ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है मेरी टीम ने बनाई है, जो वैद यहाँ पर है लाइन में, मगर पहले हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी. अब वो एआई टूल की वजह से वो टाइम कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 टाइम्स कम हो गया है. मगर अब हमें ज्यादा टाइम इस बात पे लगाना पड़ता है कि वो जो आउटपुट आ रही है, क्या वो आउटपुट ऐसी है कि जो एथिकली एंड मॉरली हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि मैं खाली उस पर रिलाय ना करूं, उसको क्वेश्चन करूं और उसको ठीक भी करूं अपनी असेसमेंट के हिसाब से और उसको आगे लेके चलूं. तो जो रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन बनाने की, जो लेट्स से 15 दिन पहले होती थी, दैट हैज कम डाउन टू 4 days. एंड जो उसकी एथिकल वैल्यूएशन जो पहले हमें नहीं करनी पड़ती थी, 15 दिन में शामिल होता था बिकॉज आपने उसको स्क्रैच से बनाया, दैट टेक्स अनदर 2 days फॉर एग्जांपल. तो द एंटायर एफिशिएंसी has reduced to by half, but the nature of the job and the beast has changed substantially, and we need to make sure that we will attune ourselves according to that. I don't think any policy will be able to give us any motivation to do it. Having said that, मैं policies का बड़ा दाई हूँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि policy नहीं बनानी चाहिए, मगर policies can take you that far only, Dr. Sir. It's the requirement and it's driven by the need. And वो need जो है ना वो बड़ी बड़ी जरूरी चीज है. मैं यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि अब आप देखिए ये जो अभी जीनियस एक्ट आया है, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपसे वो स्लाइड 7 में जिक्र किया था कि एआई एंड क्रिप्टो में, वो मेरा कहना ये है कि वो इसलिए आया है बिकॉज यूएस को करेंसी का थ्रेट है कि यूएस की 2 माइट है, एक काइनेटिक माइट है और दूसरी इकोनॉमिक माइट है. काइनेटिक माइट तो अपनी जगह पे है ही, द साइज ऑफ द फोर्सेस, द सोफिस्टिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट. जो दूसरी वाली है वो है इकोनॉमिक माइट, जो उसकी करेंसी में रेस्ट करती है, बिकॉज 90% ऑफ द ट्रेड ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन यूएस डॉलर्स. उनको यूएस डॉलर की रिप्लेसमेंट का जो थ्रेट था, वो थ्रेट चाइनीज युआन से या ब्रिक की न्यू करेंसी लाने पे या यूरोपियन यूनियन से नहीं था. वो जो थ्रेट था वो उनको क्रिप्टो से था, क्योंकि वो डेमोक्रेटाइजेशन हो गई. आप जो और वो फिर उन्होंने ना वे पॉलिसी को लेके आए जिसमें उन्होंने मेक श्योर किया कि जो जीनियस एक्ट है उसमें उनकी करेंसी कभी भी डाइल्यूट ना, और इट बिकम्स द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट्स वर्किंग परफेक्टली वेल. आप देखिए ये जो अभी यूजेज इन द लास्ट 2 years वो तकरीबन 15% पे चला गया है ऑफ द टोटल क्रिप्टो स्पेस ऑफ स्टेबल कॉइन. और उसके जो यूज केसेस हैं वो भी ज्यादा प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो. Assalamu alaikum. Dr. Ghulam Nabi, Dean, Faculty of Management Sciences, University of Portland. Sir, a wonderful presentation and discussion. As a nation, whenever we are, any individual from our country, when he lands in abroad, he abruptly behaves differently. When he returns back, and he starts behaving differently. What I look into, even in the academic faculties, ethics has always remained a problem. Sometimes it seems like power has become the ethics, like power is power. So
under such circumstances, use of AI by the students or academicians, we cannot stop that, and we should not. But the approach as a nation to behave ethically has not been a priority. Now, shouldn't we declare sort of an emergency, sort of a very a campaign on the national level that unless and until we will not be ethical, we cannot make a substantial development. I mean, only after that an individual will behave the same the way he is behaving abroad, because ethics comes from the within. It doesn't come through the policies. Thank you. जी डॉक्टर नबी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पहलू पे अभी हाथ रखा। ये अगर आप नोटिस करें तो मैं यही एजिटेट कर रहा था डॉक्टर नवान के रिस्पॉन्स में कि ये पॉलिसी से चीजें ड्राइव हुई। और मैं दोबारा जो मैंने पहले डॉक्टर सोफिया को जवाब दिया था अबाउट द चार्टर ऑफ सोसाइटी, ये एसेंशियली चार्टर ऑफ सोसाइटी से ड्राइव। और जो एथिक्स है ना, वो तो पूरा का पूरा मामला ही चार्टर ऑफ सोसाइटी। हम किस चीज को गलत कहते हैं, किस चीज को सही कहते हैं, वो ड्राइव करता है कि एथिक्स क्या है। और देयरफॉर इफ वी हैव टू अच्छा, एथिक्स इतनी फ्लूइड चीज है डॉक्टर साहब कि वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसको क्रिस्टलाइज करें एज मच एज पॉसिबल। व्हाट डज एथिक मीन्स? मैंने आज ये कोशिश की है कि मैं एथिक्स को, इस प्रेजेंटेशन जो मैंने आपसे की है आज, उसमें उसको मैं डायमेंशन करूं कि वो क्या 4 एंगल हैं कि जिसपे हमने उसको एथिकली जज करना है और इवेल्युएट करना है। व्हाई? बिकॉज आप खाली अगर इंसान को ये कहते रहेंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है, तो गालिबन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इट हैज टू बी अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एंड वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी उस पर डेवलप होगी जब हम खुद उसको रिवॉर्ड करने लगेंगे जिसने हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड से ऑपरेट किया, और हम खुद उसको पेनलाइज करने लगेंगे जिसने कॉम्प्रोमाइज किया उन एथिकल स्टैंडर्ड्स। बट वी नीड टू डिफाइन दोस एथिकल स्टैंडर्ड्स वेरी वेरी क्लियरली ऑफ व्हाट डज दोस ethical standards entail. खाली ethical कहना, what does it mean, is very important. उसको बॉक्स इन करना बहुत जरूरी है, और मैंने आज कोशिश ये की है डॉक्टर साहब कि मैं उसको आपको बॉक्स इन करके बता दूं कि AI की एरा में जो ethical standards हैं, वो 4 जो हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें किस तरह हमने उसको फिगर आउट करना है और किस तरह आगे लेके चलना। और फिर ये आपका लर्निंग का फेज होगा। जब वो यूनिवर्सिटीज में से पढ़ के आएंगे तो वो इंस्टीट्यूशन में आके ये क्वेश्चन पूछेंगे या प्रेजेंट करेंगे कि हमने इस बेसिस पे ये टूल यूज किया है, जिसके ये बेसिस थे, और हमने इसका ये AI का एलिमेंट निकाला, फॉर एग्जाम्पल। तो देयरफॉर इट इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू माय माइंड इज टू बॉक्स इन व्हाट द एथिकल वैल्यूज मीन in the context of AI, for example. Zafar साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। I think in spite of your not being very well disposed, I think you've taken almost 45 minutes and given a very thoughtful presentation. And आपसे जब भी बात होती है, I think you always leave some new ideas for us to mull over. और आपने हमें I think एक simple but effective framework दिया है। So inshallah we'll again engage with you at the NBAC forum where we could get you in person to benefit from your insight. बहुत बहुत मेहरबानी। Thank you. Thank you, Dr. Sahab. It's entirely my pleasure.